Greetings of the day. Today, on the occasion of the World Environment Day, we'll talk about few important facts with regards to the environment. The World Environment Day is on like 5th of June every year. Now, first of all, what is environment? Whatever surrounds you, whether it is your living, that is your biotic or non-living things. लिविंग या नॉन लिविंग थिंग जो भी हमारे सराउंड करती है उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं. और इन दोनों का इंटरैक्शन ऑफ बोथ ऑफ देम, खुद लिविंग के अंदर इंटरैक्शन और लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में इन्वायरमेंट. नॉन लिविंग फॉर एग्जांपल आपका लैंडस्केप हो गया, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांट्स हो गए, सबका इंटरैक्शन जब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम. ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर सबका इंटरैक्शन हो रहा है, जिस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल सिस्टम की बात करें, अगर हम पानी की बात करेंगे तो पानी का इकोसिस्टम होगा, लैंड के इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे वहां का इकोसिस्टम होगा. सो जहां के सिस्टम इस ज्योग्राफिकल एरिया, जिस एरिया में जहां पर इंटरैक्शन हो रहा है. और एनवायरनमेंट क्या है? जो एवरीथिंग विच सराउंड्स अस इज योर एनवायरनमेंट. नाउ वी गो इनटू द टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द अर्थ. You have an envelope which surrounds the earth, and this envelope which is surrounding you is atmosphere. And the atmosphere basically comprises of your gases and your particulate matters. So why now we talk about the theme. First of all, this is ecosystem restoration. Ecosystem restoration. So first most important thing we talk about, this theme 2021 is ecosystem restoration. The first important thing I will talk about is your greenhouse effect. Greenhouse effect. ये greenhouse effect कहाँ से आया? आपने देखा होगा कई पार्क्स में, कई जगह पर एक एरिया कवर्ड होता है और वो वाइट ग्रीन क्लॉथ से कवर्ड होता है. उसके अंदर कई बार ग्लास वेयर्स होते हैं और जो ग्राउंड में प्लांट्स होते हैं, और कई बार ये ग्लास वेयर्स नहीं होते, सिर्फ ये ग्रीन क्लॉथ होता है. तो ये ग्रीन क्लॉथ क्या करता है? व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस ग्रीन क्लॉथ? ये ग्रीन क्लॉथ क्या करता है? ये सारी हीट को अंदर आने देता है और इम्पॉर्टेंट थिंग्स और बाकी चीज़ों से कट ऑफ रखता है. एंड दिस प्लांट विच इज़ गेटिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, इट नीड्स द हीट, और ज़्यादा देर तक की हीट फॉर फोटोसिंथेसिस. तो जब ये हीट मिलती है तो ये प्लांट ग्रो करते हैं. द बेसिक पर्पज इज दी जो इन्वायरमेंट हेयर है ना, इसका टेम्परेचर रेज हो जाता है और कॉन्स्टेंटली रेज टेम्परेचर होता है. जितना ऑप्टिमम ज़रूरत होता है उतना ऑप्टिमम मेंटेन किया जाता है. नाउ टॉकिंग इन दिस, टेकिंग इट इनटू द टर्म्स ऑफ the atmosphere. क्या है हमारा एटमॉस्फेयर? भी क्या करता है? ये स्क्रीन का काम करता है. और ये क्या करता है? बेसिकली क्या करता है? अल्ट्रा वायलेट रेज और वो हार्मफुल रेज को ये प्रिवेंट करता है, ये अंदर आने नहीं देता है. सो इट अलाउज योर हीट एंड द रेडिएशंस टू कम इनटू द अर्थ, एंड दिस बीइंग coming back when it strikes the earth, this radiation again being thrown into the atmosphere, back into the atmosphere. Little bit of, because of this envelope, little bit of this is being trapped here for maintaining the temperature around. तो temperature, हमें temperature की भी ज़रूरत है, because कहते हैं अगर ये envelope नहीं होता तो शायद अर्थ का temperature would be as low as -20 degree centigrade. And you know -20 degree centigrade is not very good for, congenial for your life. Where we know the most comfort zone we always talked about in terms of 20 to 25 degrees centigrade. So who is this imparting this temperature? It is your sun and this atmosphere being providing it. So this was the optimum where we human beings did not interfere into the atmosphere, but we being the ambitious human beings, what did we do?
we first of all we did deforestation, cut down the trees. Then what we did, we added on to the automobiles, we used the refrigerations. So what at the end what did we do? We increased carbon monoxide concentration, we increased the methane level, we increased the water vapor level, we had the ozone itself, ozone, the layer which is already there, which was there, and one more important thing which we talked about refrigeration was CFCs. So these are basically known as the gases which trap the heat, and do not allow. So these 5 gases are also known as, इन 5 गैसेस को जो कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये 5 गैसेस हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, और ये क्या करते हैं, एक इंसुलेशन का काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो हीट है जो कि बाहर निकल सकती होती थी, अब वो इंट्रैप हो जा रही है, और ये क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। और ये ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, वी पीपल नो कि सारे के सारे ग्लेशियर्स गलते जा रहे हैं और हैजार्डस चेंज होते जा रहे हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट में है। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में जब जा करके अब हम पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सीधे पोल्यूशन क्या चीज़ होती है, हम बार बार सुनते हैं पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। कोई भी चीज़ जो हमारे अंदर फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज लेकर के आए, जो उसकी इनिशियल प्रॉपर्टीज़ थी, जो इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ थी, उस इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर जब ये फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज लेकर के आएंगे तो इसे हम पोल्यूशन बोलते हैं। इन्वायरमेंट में एक चीज़ और हम बात करें जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, वो हम सराउंडिंग इन फिजिकल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। एक आदमी का अपना इंटरनल इन्वायरमेंट भी होता है, and we're not talking in the context of that internal environment, I'll talk sometime later। वो environment जो आपके लिए अंदर का environment होता है। So I basically am talking about the surrounding environment, the physical environment, the biological environment जो हमारे शरीर के बाहर है, जो हमको affect कर रहा है, उस environment के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जब पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो हम एयर पोल्यूशन में आते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो पोल्यूटेंट्स खुद ही गैसेस या हार्मफुल केमिकल्स एमिट करते हैं, जो खुद ही अपने सोर्स ऑफ पोल्यूशन होते हैं। यहाँ पर एटमॉस्फेयर या केमिकल चेंजेस कुछ नहीं हो रहे होते हैं जो किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज करते हों। वेयर सेकेंडरी पोल्यूशन क्या होते हैं कि एटमॉस्फेयर के इंटरैक्शन से और अदरवाइज केमिकल चेंजेस होने के बाद जो भी कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बाई प्रोडक्ट्स इन फॉर्म ऑफ गैसेस और अदर थिंग्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। you have particulate matters। अच्छा, पार्टिकुलेट मैटर के बारे में बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू हो जाता है, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि क्या सारे के सारे पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उनको हम इनहेल कर सकते होते हैं क्या, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वो पार्टिकुलेट मैटर्स हमारे कितने साइज के होने चाहिए कि बॉडी इनहेल करे, क्योंकि एवरीथिंग आप हम इनहेल नहीं कर सकते हैं, उनका साइज कितना होना चाहिए। तो जो हमारा जो पार्टिकुलेट मैटर्स है वो हमारा साइज अगर रेस्पिरेबल होना चाहिए तो म्यू मीटर्स यानी कि माइक्रॉन्स में हम जब मेजर करते हैं तो 10 माइक्रॉन से कम हम इनहेल कर सकते हैं। लेकिन ये 10 माइक्रॉन से कम इनहेल करके क्या सब कुछ हमारे बिल्कुल अंदर तक चला जाएगा? नहीं, इसका भी कैटेगराइजेशन है। जो एल्वेलॉय तक पहुंचेगा उसका इक्वल टू और लेस देन 1 माइक्रॉन है अगर एल्वेलॉय तक, तो जो जितना छोटा पार्टिकुलेट मैटर होगा उतना ही घातक है आपके एल्वेलॉय के लिए। वेयर इज
ट्रेकिया तक 2.5 माइक्रोन इक्वल टू, एनीथिंग अबव दिस to 10 will only be at the level of your nose where they will be entangled up. Anything above 10 micron cannot be inhaled by your, so whether you have silicosis, whether it you have bagasosis, whatever it is, particulate size will always be less than 10 microns. और वट एवर वी बी टॉकिंग अबाउट, इसीलिए हम कोई बीमारी के बारे में बात करते, कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के बारे में बात करते, वहाँ भी हम माइक्रॉन्स के बारे में हम बात करते हैं, बिकॉज दिस बिकम सो वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि पार्टिकुलेट मैटर, लोग समझते हैं कि जितना छोटा साइज उतना समझ नहीं आना, नहीं, जितना छोटा साइज है उतना आपको नुकसान करेगा। एंड दे हैव नोन टू कॉज ऑल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें कि 2 COPD being the major cause, followed by asthma, and then you have other occupational disorders जो कि inhalations के बाद हो सकते हैं। जब पोल्यूशन के बारे में अब दूसरा इम्पॉर्टेंट इश्यूज, आर नॉट गोइंग इनटू एवरीथिंग, जस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स आज पकड़ रहा हूँ इन्वायरमेंट डे के हिसाब से। दिस इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में हम तो पहली इंपॉर्टेंट चीज इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में टॉप एक एक चीज़ों के बारे में यहीं से बात करना शुरू करें। इकोसिस्टम कैसे रिस्टोर होगा, तो हम ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको जनरेट ही ना होने दें, यानी कि हम CFC यानी कि रेफ्रिजरेशन इन एवरीथिंग्स को कम करें। दूसरा, कचरा कम आने दें, वेस्ट टू कम। देन जो हम बेसिक फ्यूल्स यूज करते हैं वो फ्यूल की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कार्स में हो, द फ्यूल एफिशिएंट कार्स, बिकॉज जितनी एफिशिएंट कार्स होंगी या जो सोर्स होगा वो कम फ्यूल यूज़ करेगा। तीसरा हम यहाँ पर बात करेंगे ऑल्टरनेट सोर्स अगर कुछ मिल जाए, फॉर एग्जांपल सोलार बैटरीज, आजकल सोलार पैनल्स का ज़माना आ गया है, एंड सो ऑन थिंग्स, अगर आप ये इस्तेमाल करें और जितना आप ग्रीन होते चाहें, यानी कि पेपरलेस वर्क करते जाएं। पेपरलेस वर्क जब आप करते हैं तो पेपर कहाँ से बनता है, ऑलरेडी इट बिकम्स फ्रॉम द ट्रीज, तो वो वहाँ से बच सकता है। बट चूंकि इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम वेंटिलेशन, जो कोरोना के समय बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट इशू, वेंटिलेशन, क्योंकि दो यू हैव ऑर्गेनिज्म which is very transmissible, it is very fatal and it has very bad outcomes, but हम बहुत सारी चीज़ें एक अपने अंदर के इकोसिस्टम को तो हमें मेंटेन करना है, साथ में जो सराउंडिंग में चीज़ें कम से कम हैपन हो, तो हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को स्टासिस होने कम देना चाहेंगे। तो उसके लिए वेंटिलेशन बिकम सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द नेचुरल फ्लो ऑफ एयर इनटू एंड आउटसाइड द रूम। किसी चीज़ को हम यहाँ पर कंसंट्रेट होने ही नहीं दे रहे हैं। हर बॉडी, हमारी बॉडी क्या करती है, हर मोमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड हर मोमेंट में जनरेट कर रही है, जो भी कुछ है एक्सपायर आउट कर रही है, एक्सपायर कर रही है, उस एक्सपिरेशन का लॉन्चमेंट कहाँ हो रहा है, आपके रूम में हो रहा है। अगर इसकी जितनी कम से कम डेंसिटी होगी वो आपको उतना ही कम इफेक्ट करेगा। तो डेंसिटी कम करने के लिए क्या होगा, इसको पुश आउट करना होगा और नई एयर अंदर आनी होगी। सो इसे हम बोलते हैं, द पुशिंग आउट ऑफ द एयर इज नोन एज योर वेंटिलेशन विद योर फ्रेश एयर। एंड व्हेन आई से पुशिंग इन ऑफ द एयर, जो एयर की कैसी हो, एयर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हम पॉल्यूटेड एयर पुशिंग कर रहे हैं, नहीं, ऐसी एयर जो हमारे रूम को टेम्परेचर गिराएगी, वहाँ के पार्टिकुलेट मैटर्स कम करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कम करेगी और बॉडी की इफिशिएंसी को इंक्रीज करेगी। तो उसे हम वेंटिलेशन के बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहला है नेचुरल वेंटिलेशन, जिसमें हम परफ्लेशन के बारे में बात करेंगे। परफ्लेशन जिसमें क्या होता है, अगर डायरेक्ट एयर मिलती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है और एयर थ्रू आउट बाहर हो जाती है, इसे हम बोलते हैं परफ्लेशन। दूसरा क्या चीज़ होता है, अगर हमें कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाता है,
और ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद गैस इधर उधर जाने लगती है तो उसे हम बोलते हैं एस्पिरेशन, एस्पायरेशन। कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है तो जो एयर के पीछे का जो लूप होता है वो उसको काउंटर करता है और स्पेस पाता है जहाँ से एयर बाहर निकलती है, उसे हम बोलते हैं एस्पिरेशन। एंड थर्ड इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब माइन्यूट पोर्स के अंदर से एयर का बाहर आना जाना, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से सबसे कम होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बीन बाय परफलेशन। इसीलिए अपने रूम्स को अच्छा रखने के लिए आपको विंडोज रूम में होना चाहिए, डोर्स होने चाहिए जो कि इसको करेगा। नाउ मैकेनिकल वेंटिलेशन के बारे में बात करें, जहां आप आर्टिफिशियल यूज करते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन आपने किचन्स में देखा होगा, एग्जॉस्ट होता है। एग्जॉस्ट का काम क्या होता है? पुश आउट द एयर, दिस वार्म एयर बीइंग पुश्ड आउट, क्योंकि वार्म एयर ऊपर होती है, एग्जॉस्ट फैन ऊपर लगे होते हैं, स्मोक होता है एंड अदर थिंग्स जो होती है वो पुश आउट होती है बाहर, दिस इज नोन एज एग्जॉस्ट। दूसरा क्या होता है, कभी कभी अच्छी और ठंडी एयर को रूम के अंदर प्रेशराइज सेंट्रीफ्यूगल फैंस लगे होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फैंस लगे होते हैं, बड़े बड़े पंखे होते हैं जो हवा को अंदर रूम के अंदर पुश इन करते हैं। इस वाले वेंटिलेशन को प्लीनियम वेंटिलेशन कहते हैं। और एक वेंटिलेशन इन दोनों कंबाइंड वेंटिलेशन होता है, दैट इज योर नोन एज कंबाइंड वेंटिलेशन और बैलेंस्ड वेंटिलेशन। अब जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे तो next we will talk in the context of the monitoring of the gases। जो गैस की जो मॉनिटरिंग होती है, गैसेस की मॉनिटरिंग होती है बाहर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली गैस जो मॉनिटरिंग होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसका सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग हर इंडिसेस में इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर एयर पोल्यूशन के लिए कोई इंडिसेस यूज़ होती है तो सबसे ज़्यादा गैस जो यूज़ होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ होती है। दूसरा जो इंडिकेशन होता है वो आपका है क्या कहना चाहिए, यू हैव फिल्टर पेपर्स, वहाँ से एयर पास होती है, यू हैव जो डस्ट पार्टिकल्स इसके ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं और इन डस्ट पार्टिकल्स को चेक आउट करते हैं। दिस इज नोन एज your that is known as your soiling index। ये भी एक मेजर होता है। अब चूंकि हम एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और हम थर्मल इंडिसेस के बारे में भी बात करना चाहते हैं कंफर्ट जोन के रिस्पेक्ट में। पहले केवल टेम्परेचर इस्तेमाल होता था कंफर्ट जोन के लिए, फिर इसके बाद कंफर्ट के लिए टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी यूज़ होने लगा। उसके बाद कूलिंग पावर एक टर्म आया। कूलिंग पावर जब टर्म आया तो उसके बाद टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट, एयर टेम्परेचर एंड एयर मूवमेंट वर known as your the cooling power। तो यहाँ पर एक नई चीज जो जुड़ करके आई वो क्या थी, आपकी एयर मूवमेंट। अब लेकिन उसके बाद इन्होंने बात की इफेक्टिव टेम्परेचर। अब ये क्योंकि ये सेंसेशन की बात नहीं करता, अपने बॉडी को कैसा फील हो रहा है, जैसा एटमॉस्फेयर में फील हो रहा है वैसा ही सैचुरेटेड एयर होना और वो इतना ही बॉडी को फील होना, उसे हम इफेक्टिव टेम्परेचर कहते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है और बॉडी को भी उतना ही फील होने लगे। तो अगर बिल्कुल एटमॉस्फेयर के वही इम्पार्ट कर रहा है तो जो फीलिंग है, सेंसेशन की जब बात करने लगा, बॉडी को फील की बात करने लगा, तो उसे हम बोलने लगे इफेक्टिव टेम्परेचर। जबकि यहाँ पर जो टर्म्स अगेन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर मूवमेंट, अगेन यहाँ पर सेम चीज़ है। करेक्टेड इफेक्टिव टेम्परेचर जब आया तो उसने एक और नई चीज़ इसमें जोड़ी और वो था रेडिएंट हीट। तो इसे हम बोलने लगे करेक्टेड इफेक्टिव टेम्परेचर। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम कब अच्छा फील करते हैं, जब बहुत गर्मी ह्यूमिडिटी होती है तो हम परस्पायर करते हैं, तो वो कितना होना चाहिए उसका भी है। मार्क एडल्स ने
बनाया था और उन्होंने बताया था पर 4 आवर्स में कितना अमाउंट ऑफ पर्सपिरेशन हो सकता है उतना अच्छा है। एंड ही सेड इट टू बी मैक्सिमम अलाउेबल, जो उन्होंने जिसके बारे में बात की थी, ही टॉक्ड अबाउट एज 4.5 लीटर्स। उसके बाद बिल्कुल डिस्कम्फर्ट हो जाता है। तो एक चीज़ आई, जब हम कंफर्ट जोन के बारे में बात कर रहे हैं तो कंफर्ट जोन के बारे में दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स यूज होते हैं। एक तो टेम्परेचर यूज होता है और दूसरा इसे हम P4SR भी बोलते हैं, पर्सपिरेशन एवरी 4 आवरली। तो पर्सपिरेशन रेट एवरी 4 आवरली को हम मार्केटल्स इंडेक्स भी बोलते हैं। तो कंफर्ट जोन में दो इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स तुरंत देखते हैं, क्योंकि एयर मूवमेंट उतना नहीं देख पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज योर टेम्परेचर एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इज योर द पर्सपिरेशन। तो उसके भी कब कैसा कंफर्ट जोन होगा उसका कैटेगराइजेशन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेजेंट, कंफर्टेबल एंड कूल एंड कंफर्टेबल तक ही बात करते हैं। प्लेजेंट एंड कंफर्टेबल एंड कंफर्टेबल तक की बात करते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो प्लेजेंट एंड कूल जो है वो 20 डिग्री तक है। तो प्लेजेंट एंड कूल इज लाइक एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड इज योर कंफर्टेबल, second is your comfortable and cool. Pleasant and cool. Second will be your comfortable and cool. So this comfortable and cool will be slightly more than 22 degrees. So this is again 20 to 25 degree. And this comfortable is like 25 to 27. So हम उसके नीचे भी दो पैरामीटर्स, but I'm not talking about this because ये कंफर्टेबल जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है वो कंफर्टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज 25 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कंफर्टेबल टेम्परेचर क्या कहते हैं? जो कंफर्टेबल पर्सपिरेशन टॉलरेबल है उसकी तीन कैटेगरी हैं। जो फर्स्ट इज योर 1 to 3 लीटर्स, अगर वो है वो नॉर्मल कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है। सेकेंड टॉलरेबल, जस्ट टॉलरेबल, वो 3 से 4.5 है, इससे रिलेशन नहीं है। कंफर्टेबल, जस्ट टॉलरेबल, और जो टॉलरेबल नहीं होगा वो 4.5। तो अगर आइडियली हम बेस्ट देखने की कोशिश करें तो 1 से 3 लीटर और 20 डिग्री इज द बेस्ट। बट लेकिन फैक्ट्रीज में जो मेंटेन करने की बात होती है वो कंफर्टेबल की बात करना पसंद करते हैं। तो वहाँ पर लोग 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 3 से 4.5 लीटर तक भी मेंटेन कर सकते हैं पर्सपिरेशन, वो भी कंफर्टेबल जोन में आएगा। सो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे इन कंटेक्स्ट विद योर एयर पोल्यूशन। No, one more important aspect, if you want, we'll talk about even water pollution का सिर्फ एक important aspect यहाँ पर टच कर ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे वाटर के बारे में बहुत सारा चीज़ें हैं। वो क्लोरीनेशन के बारे में, सिर्फ क्लोरीनेशन के बारे में टॉक अबाउट, नॉट टॉकिंग अबाउट कि कैसे करते हैं जो पैथोजेंस होते हैं बाद में किल करने के लिए पूरे प्यूरिफिकेशन के लास्ट स्टेप में वी डू क्लोरीनेशन। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लोरीनेशन क्या होता है? जब वाटर से मिलता है क्लोरीन, इट फॉर्म हाइपोक्लोरस एसिड एंड इट रिलीजेस this again breaks down and it produces your nascent chlorine. And this nascent chlorine, ये जो nascent chlorine है ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज होती है। ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको डिग्रेड करती है और अमोनिया कंटेंट जो होता है उसको अमोनिया NH4Cl बनाकर उसको बाहर करती है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो आपके पानी के अंदर यही दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अमोनिया के कंटेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। तो जब इनको क्लोरीन को डालते हैं तो क्या होता है, ये क्लोरीन क्या करती है, अमोनिया को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर निकालती है। उसकी तब तक ज़रूरत होती है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवरीथिंग इज थ्रोन आउट और ये क्लोरीन बाहर पानी में बहाने आने लगती है। तो
जब जितनी इसको ज़रूरत है क्लोरीन के ठीक निकलने से पहले, कि सब कुछ भाई बराबर कर दिया, पानी ठीक हो गया, इसे हम बोलते हैं क्लोरीन डिमांड। और जिस पॉइंट पे ये क्लोरीन डिमांड पूरी होती है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवरीथिंग इज बीइंग थ्रोन आउट, और उसके बाद ये क्लोरीन बाहर आती है, इसे हम ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहते हैं। यानी क्लोरीन ने अपना चैनल्स ब्रेक करके आप वाटर में आ गया। तो क्या हमें पानी में कितनी क्लोरीन रखनी चाहिए, ये भी हमें समझने की बात है। हमें क्लोरीन उतनी रखने की ज़रूरत है कितनी, वाटर में हमेशा फ्री क्लोरीन जो है कम से कम 0.5 पार्ट पर मिलियन होना चाहिए, यानी कि 0.5 mg%। इतना क्लोरीन हमेशा पानी में बाहर होना चाहिए, ताकि बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं। तो पानी में कितना क्लोरीन होना चाहिए, ये आपका जितना भी क्लोरीन डिमांड है प्लस the amount of nascent chlorine which has to be there। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है और जानने की जरूरत है कि पानी में ये क्लोरीन बन तो रही है, कितनी देर में प्रोसेस होता है, कितना मिनिमम कांटेक्ट पीरियड होना चाहिए। ये मिनिमम कांटेक्ट पीरियड 1 घंटे का होना चाहिए। दिस मिनिमम कांटेक्ट पीरियड इज ऑफ 1 hour। and you have understood what is chlorine demand, break point chlorination, contact period, और कितना पानी में क्लोरीन बेसिक क्लोरीन आपके साथ अवेलेबल होना चाहिए, वो दैट इज नोन एज योर 0.5 पार्ट पर मिलियन और 0.5 mg%। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट टिप्स, the most important thing to carry home message: prevent the environment to save yourself। So do work in the lines of saving the environment.